exams taking place for SY and TY because their session got started in June. So we are busy with their paper setting, evaluation, and many other things, internal marks. So don't worry, within few days, this attendance will be updated. So you need not have to worry. Those who have attended, their attendance will be marked on your mobile app. Second thing, we have started learning new things during last lecture of your stock or inventory as per AS2. And we were dealing with the periodic system. Can anybody tell me what exactly we have done with periodic systems? Perpetual we know now. Perpetual, it's very clear our funda is, and thereby we need to maintain the record on regular basis. There might be FIFO or weighted average, where on daily basis or recurring basis, as and when this will come, we will record as an receipt or purchase. Whenever it will be issued or sold, we will write as a issued or sale. And finally, we will try to get the closing value of stock. And there might be certain adjustments which also we are aware of. Yes? So whether it is FIFO or weighted average, we know things better. Thereby, there were certain questions related to cost of sales and all. I told you there are two ways to get it. If you are getting, because cost of sales is nothing but sales only, excluding profit. So whether you take opening plus purchase less closing, that also will give you cost of sales, or only the sales reduce the profit will also be cost of sales. Am I right or not? These things have been already discussed during last lecture. Yana. Yes, sir. Yes, sir. Well, I can just give you this. We started with learning trading account. Then I have given you stock account. Okay, from where I just excluded the sales with selling price and profit from the debit side. So automatically this sales will become cost of sales. And you get the same answer. Yes or no? Isse seekha. Then same thing has, this is horizontal way to present the thing, which we have learned from FIJC and FIJC. Yes or no? Whether it is sole trader or partnership. है? इसी को मैंने statement form में सिखाया. So if you take opening stock, you will add purchase, you will deduct the closing stock. That also will give you cost of sales. हाँ या ना? यहाँ तक सीखा था आप लोगों ने? किसी को कोई डाउट? सर ये तो समझ आता है. सर क्वेश्चन में जैसे हम करते हैं तो उसमें आंसर भी आता है. हाँ, ये समझने वाली बात है. इसमें से और एक नया लॉजिक सीखना है, which is known as reconciliation. So reconciliation में, as you are aware about bank reconciliation, they were giving you cash balance, they were asking the balance of bank, or they were giving the balance as per passbook, they were asking balance as per cash book. Similarly, this can be reframed. They may give you the opening stock and they will expect you to get the closing stock, or they may give you the closing stock and they will expect you to get the opening stock. Very simple it is. See here. Okay. Opening stock 5 lakhs. See, I'm not changing the amount. I'm keeping the amount as it is. Okay, so that you can understand. So if opening stock, we will add purchase. This you will deduct cost of sales. Closing stock will be your answer. Or if there is a closing stock, you will add cost of sales. You will deduct purchases. Excuse me, sir. Yes. सर कुछ बच्चों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है. ग्रुप पर मैसेज कर रहे हैं बच्चे की प्रॉब्लम हो रहा है. वो लोग लेट ज्वाइनिंग है. Look, they are all in process. देखो आप भी समझ में आ रहेगा. एडमिटिंग कॉल करके रखा मैं सारी बच्चे. They will join. Don't worry.
जो लेट आएगा वो लेट ज्वाइन करेगा, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? हैव यू फेस एनी प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग? नो सर। There is some technical issue, don't worry. And this all recorded, they will get it. Now let us focus here what I am teaching, that is known as stock reconciliation. Very important. Okay. They will give you opening, they will expect, and most of the company they do the stock reconciliation. Or they may get the closing and they try to get the opening. Simple है, क्या करने का? इसको रिवर्स करने का. ठीक है, ओपनिंग में एज इट इज जो ऐड था, इट विल डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, द क्लोजिंग स्टॉक विल बी योर आंसर. एंड अगर रिवर्स जाओगे, पता है आप रिवर्स कैलकुलेशन करते तो जो सब्सट्रैक्ट होता है उसको ऐड करना होता है, जो ऐड होता है वो सब्सट्रैक्ट करना होता है. आपने 12th वगैरह स्कूल वगैरह में सीखा रहेगा. तो सेम लॉजिक Yes, वी sir. हैव फॉलोड हियर. So in closing stock, we added the cost of sales, we subtracted of purchases, we got opening stock. Okay. So there might be other adjustment also. Purchases means all inflow of stock. And outflow of stock. So there might be certain adjustment regarding inflow and outflow. Okay, in your question which is given. And same logic will apply here also. Achievement, inflow of stock, sales means, or cost of sales. Sales means cost of sales means what? Sales only. Sales excluding the profit. Sales excluding the profit. Yes or no? Yes, sir. Okay. So this is how you can get the questions and their solution. This is basic. Okay. There might be questions. सर जो आपके पीडीएफ में क्वेश्चन है वो फीफो जैसे टेबल है उसके हिसाब से निकालने हैं. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. All businessmen try to get their reconciliation of stock. Suppose उन्होंने closing stock से चालू करी, तो उनको ये पता होना चाहिए मेरा opening stock सही था कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर गड़बड़ स्टॉक में ही होता है. इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर में डेली बेसिस पे स्टॉक रिकंसिलिएशन करते हैं, डेली बेसिस पे. तो प्रैक्टिकली इट हैज लॉट ऑफ मीनिंग and lot of usage also. Okay, but logic is what? Same. समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक से अगर मैं ओपनिंग स्टॉक ढूंढने की कोशिश करूं तो भी मुझे मिल जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक की तरफ भी जाऊंगा तो भी मुझे आएगा. जितने भी इनफ्लो रहेंगे आपको ऐड करने हैं. इनफ्लो क्या हो सकता है? ये ऑर्डर नहीं किया था फिर भी कुछ डिलीवर कर दिया गया, दूसरे डिपार्टमेंट से हमने
these kind of adjustment you may come across in your question. ठीक है, let's say, but that is not as per AS2. This is very practical. देखो, समझ में आ रहा है? The valuation of stock as per balance sheet determine the value of stock taken as per balance sheet on 31st March 2016. Okay, 2016 31st March का बैलेंस चाहिए उसको, किसका? स्टॉक का. The stock was physically verified on 23rd March. कभी किया था फिजिकली? 23rd मार्च को वेरीफाई किया था. एंड क्या वैल्यू था? 6 लाख का वैल्यू था. बिटवीन 23rd to 31st ये सारी चीजें हुई. क्या क्या हुई? परचेज हुआ था 50,000 का. ओके, 20,000 का गुड्स डिलीवर हुआ था 5th अप्रैल को. 5th अप्रैल को हुआ मतलब we are going to consider this item or not? Are you going No, to? sir. No. Why? Because it is after 31st March. Am I right? समझ में आ Yes, रहा है आपको? Yes, sir. My all things will be between 23rd to 31st March. Clear है? Yes, sir. Next, out of goods sent on consignment at cost were unsold. Goods sent on consignment, whether it is inflow or outflow. Goods sent on consignment, whether it is inflow or outflow. बोलो. So वो तो अनसोल्ड है ना, ट्रांजेक्शन तो वो हुआ ही क्या नहीं. किया मेरे को? Outflow? अरे भाई, वो क्या किया? मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं ना बेटा. वो क्या कर रहा है? Inflow मुझे है. उससे क्या लेना देना? Will it be inflow? Inflow. Goods sent on consignment मतलब अंग्रेजी में भी प्रॉब्लम है तेरे. Goods sent समझता है? हाँ सर, भेज. सेंड मतलब भेजना होता है भाई. अभी हम लोग के सिलेबस में भी कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट. लेट्स सी चेक वेदर वी हैव देयर. सर वो अनसोल्ड करके कंफ्यूज हो गया. जाने दो ना, वो अनसोल्ड उसने क्या किया, मुझे क्या लेना देना. या तो सेमेस्टर 1 में आपको कंसाइनमेंट या तो सेमेस्टर 2 में कंसाइनमेंट. ओके, सेमेस्टर 2 में आपको कंसाइनमेंट भी सिखाऊंगा मैं. ठीक है, तो ये फंडा और क्लियर हो जाएगा. कंसाइनमेंट इज कंसाइनर्स and consignee, and consignment is nothing but as an agency जो अपने behalf में काम करता है. So the person who is sending, the principal is consignor. Those who are selling and charging the commission, they are consignee. Understood? And this entire process is known as consignor. Clear है? हाँ या ना बाबा, बताओ बताओ. समझा आप लोगों को? तो एक्चुअली इट इज आउटगोइंग ऑफ गुड्स. अच्छा मुझे ये बताओ, ओपनिंग टू क्लोजिंग पूछ रहा है या क्लोजिंग टू ओपनिंग पूछ रहा है? पहला लॉजिक यहाँ से, ओपनिंग टू क्लोजिंग पूछ रहा है या क्लोजिंग टू ओपनिंग पूछ रहा है? Sir, opening to closing. वेरी क्लियर. ठीक है ना. 23rd का वैल्यू दिया है एंड 31st मार्च का वैल्यू पूछ रहा है. म्हणजे अपने को ये मेथड फॉलो करना है या ये मेथड फॉलो करना है? कौन सा करना है? फर्स्ट वन, और ओपनिंग स्टॉक First से. one. समझ में आ गया. तो जितने भी इनफ्लोज हैं वो ऐड हो जाएंगे एट कॉस्ट. हाँ, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल.
सारा ट्रांजैक्शन विल बी एट कॉस्ट। जहां भी सेलिंग प्राइस है हम लोग सब उड़ा देंगे, हमको नहीं चाहिए, सेल्स निकाल देंगे, इसलिए हमने सेल्स नहीं लिखा, क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this is just extra I am teaching, okay? It might not be taught in other division also, but don't worry. मेरे को लगता है कि मैं बच्चों को जो प्रैक्टिकली आने वाला है उनके लाइफ में वो सिखा दूं, इसके लिए मैंने वो लॉजिक से आज इसको कनेक्ट किया कि बेटा ऐसे होता है, आपने ये ऑलरेडी सीखा था। इससे मैंने आपको स्टॉक अकाउंट सिखा दिया, मैंने सेल्स को एट प्रॉफिट एक्सक्लूड कर दिया, तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। सेल्स नहीं है ये, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसको बेचने का कॉस्ट ये है। तो अगर सेल्स और प्रॉफिट उड़ा देंगे तो हमारा ये स्टॉक अकाउंट कहलाता है, जो आपको आता है। बट स्टॉक अकाउंट को मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकली सिखाना चालू किया, उसी वर्टिकल से मैंने आपको रिकंसिलेशन सिखाना चालू किया। नाउ यू आर गेटिंग द लॉजिक, ठीक है? So accordingly you can start with opening, you can get the closing, you can start with closing and you can get the opening balance of stock, no problem। कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी क्लियर चीज है, ठीक है? अभी इनफ्लो एंड आउटफ्लो के ऐसे एडजस्टमेंट आ सकते हैं, अपने को क्या है कर लेंगे, अपने को समझ में रखना है उस, लेकिन वी शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट डेट। अभी जैसे 31 मार्च दिया है और ये बोल रहा है 5 अप्रैल, तो ये मेरे लिए इमटेरियल ट्रांजैक्शन है, मतलब 31 मार्च तक तो वो स्टॉक मेरे स्टॉक में ही पड़ा हुआ है। 5 अप्रैल को क्या होगा हमको नहीं लेना चाहिए। तो दूसरे के स्टॉक में, मैंने बार बार बोला है, जब भी ये टॉपिक करेंगे मैं अपने आप को क्या समझूंगा, आई एम अ स्टोर कीपर, आई एम अ गोडाउन कीपर। मैं उसके हिसाब से टैली करूंगा चीजें, उसके हिसाब से अप्रोच लगाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? हमने भेज सर ये दिया, लिंक में प्रॉब्लम है क्या कुछ? इसमें क्या प्रॉब्लम है रे? 55 सर लिंक बच्चे में अटेंड सर कर बहुत रहे हैं, बच्चों का मैसेज आ रहा है, 55 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहा है सर, वही बार बार बादल गरज, कनेक्टिविटी जा रही है बच्चों की। वही बादल गरजते जो बरसते नहीं है। अभी मैंने एमकॉम को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सिंस मॉर्निंग आई एम टेकिंग लेक्चर। ओके सर। Since the day I have started lecture, I have not changed the link, I have not changed the password. Have you realized? एक ही ऐसा टीचर No, होगा sir. जिसने कोई चेंज नहीं करा है, कभी किया है आज Yes, तक, ट्रू सर। right? Whether it is FY, whether it is CY, whether it is MCOM, whether it is PhD, कॉमन ही रहता है। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे, तुम्हारे 4 बच्चे चिल्लम चाली कर रहे, तो तुमको लीडर बना दिया तो मतलब तू राहुल गांधी की तरह कभी भी आवाज करता है। कोई गल नहीं, तुम लोग सिखा देना उनको, बट मेरे हिसाब से तो 55 बच्चे हैं मेरे पास, और आपके क्लास में वही 55 सर वो उन बच्चों को पढ़ने का टेंशन ही, अटेंडेंस का ज्यादा वो है। अटेंडेंस मेरे लिए टीचिंग इज इम्पोर्टेंट। चलो बच्चा पार्टी, रेस्ट ऑल, आई एम नॉट टीचिंग ओनली टू दिस 4-5 लीडर्स। अब ये बेचारे लोग लीडर बन गए तो इन लोग बेचारे वीडियो भी ऑन करके रखते, बाकी बच्चे कोई आंसर नहीं दे रहे। Kathy, I have asked you that day also where you were. Sorry, sir. I have asked you. I wanted to give you a prize, but you have left during last lecture. Am I right? तो आपने एक प्राइज लेना है, वैरही ने एक प्राइज लेना है, ओम करके एक लड़का है उसने एक प्राइज लेना है, मुझे याद हो गए सर तीनों वो तो बेचारा कब से गायब है। जो भी है, बट हमको उसको दे देना, अपन ने एक बार प्रॉमिस करा तो देना पड़ेगा, तो हमारा क्रेडिबिलिटी खराब हो जाए, ठीक है? So even in this entire sheet, there is only one question. I'm just going to teach you the logic. I expect you to solve with your own.
नहीं होगा देन आई विल सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट वाज आउट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 30,000 वर अनसॉल्व, लेट इट बी, बट मेरे स्टॉक से तो गुड्स चला गया आउटगोइंग। सेल्स वर 1,70,000, सेल्स वर 1,70,000। मेरे लिए सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस पे कुछ भी चीज नहीं लूंगा, मैं सारा चीज किस पे लूंगा, कॉस्ट प्राइस पे लूंगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे बेटा, पहले वो लॉजिक समझ लो। नॉर्मली सेल्स ऑफ गुड्स आर कॉस्ट प्लस 25%। ये लॉजिक किसी ने समझा है? 1/3 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ सेल, ऐसा सब किसी ने कभी सिखाया है आप लोगों को, किसी टीचर ने? Yes, sir. किसको सिखाया? सर सिखाया तो है बट भूल गए। सर, देखते करके ट्राई करेंगे, होगा तो। ट्राई Sir, नहीं if करना। we take the cost as x, then x plus 25% of x equals to 1,70,000. बाप रे, इतना सारा सिखाओगे तो मैं भूल जाएगा। एक्स वैक्स नहीं सीखना है अपने को, ठीक है? मैं तो मर आ जाएंगे हमारे कॉमर्स के बच्चे, इतना नहीं पढ़ते कभी। यही तो, इसके लिए तो कॉमर्स लिया है, पढ़ना रहता थोड़ी कॉमर्स लिया रहता है। ठीक है, तो ये चीज भी सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, सबको पता है। लेट द कॉस्ट बी 1, प्रॉफिट इज ऑल्सो बी 1, सेल्स विल बी, क्या आएगा? 2। 2. देखा, कौन बोला ओम नहीं है? देख, तेरे नहीं रहने के बाद यहाँ बहुत सारा कपड़ा हो रहा है भाई, तेरा प्राइस इधर उधर हो जाएगा। Now भाई वीडियो ऑन करके let us understand the profits. I told the profit on cost, right, is 1/1. Profit is 1 rupee. So the profit is on cost is 1 divided by 1. ठीक है, 1/1 इंटू 1 करोगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट ही आएगा ना। ठीक है, द सेम प्रॉफिट विल बी 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रुपीज प्रॉफिट आएगा। Understood the logic? Let us assume the cost be 2 rupees. Again, I am assuming profit be 1. Sales will be how much? 3. 3. Okay. Now understand this logic. ये क्या हो जाएगा? Your profitability will be 1/2 of cost, 1/3 of sale price. ये बहुत बार मैं यूज करूंगा आने वाले दिनों में, कीप इट इन माइंड। जितने भी लॉजिक में सिखा रहा हूँ ना, ये सारे आने वाले लेक्चर्स में यूज होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आई टीच यू एंड आई विल मेक यू लर्न। मैं 10-15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, क्वेश्चन सॉल्व आपने खुद से करनी है। मैं उस काबिल आपको बना दूंगा जो मैं डे फर्स्ट से बोल रहा हूँ।
कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. दिस इज द राइट वे ऑफ टीचिंग इन डिग्री एंड पोस्ट, आई मीन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम. यस और नो? चलने के लिए सिखाना चाहिए. चलना तो बच्चे ने खुद से, है ना? तभी तो कंपनी चलाएगा वो. अगेन लेट अस अज्यूम कॉस्ट एज 3, प्रॉफिट में कांस्टेंट रखता हूँ. सेल्स क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो. 4. ओ, देखो इस लॉजिक को समझो. यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 1/3 and Yes, 1 1/3. upon third of cost, 1 upon fourth of 4 price. sale. Again, let us assume be 4, profit be 1. 5. 5. ठीक है? 1/4 and 1/5. 1/4 of cost price, 1/5 of sale price. So what is the moral of the story? If the profitability is given on cost, to get it on sale, we have to add 1 to the denominator. Are you understanding? Or if it is given on sale, to get it on cost, we have to We deduct have to 1. minus. Denominator. ठीक है? This 1 upon 2 is nothing but, this 1 upon 1 is nothing but 100%. This 1 upon 2 is nothing but 50%. This 1/3 is nothing but what? 33.33. 33.3. 1 upon 25. 25. समझ में आया बेटा? तो आपको या तो ये दिया रहेगा या तो ये चीजें दी रहेगी. ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं. ठीक है? If it is on cost, to get it on sale, we'll add 1 to the denominator. If it is given on sale, to get it on cost, we'll have to subtract 1 from the denominator. Clear है? Any doubt? यहाँ के बाद का जो adjustment है, we have to apply that. Now sales is given. Of course, the sales will never be at cost. Sales will always be at selling price. उसमें logic लगाना है. And profitability is cost plus 25%. मतलब selling price कितना? 25% म्हणजे 25%. 1/4. 1/4. So 1 plus 1/4. है ना? ठीक है ना? कॉस्ट पे 1/4 प्रॉफिट है, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा? 1/5. 1/5. समझ में आ गया? इसके लिए हम x लेंगे, y लेंगे, z लेंगे, 100 लेंगे, हम पागल हो जाएंगे. इतना कॉमर्स वाला टाइम नहीं देता. समझा बेटा? Whatever I will teach or I am going to teach, this all has a lot of logic. Okay, this is all outcome of experience. Okay? So if cost price is 2/5, then sales will be 2/7? Or is this relationship with only one? Only when this kind of percentile is there. अभी बोलोगे 13%, then this will not applicable. Then again, you have to take it the old logic of taking 100, then 113, then 100 upon 13 upon 100 and 113 upon. ये कब रहेगा जब ऐसे परसेंटाइल है. बट अगर मैं बोलूंगा नहीं 13% है, फिर मैं क्या करूंगा? देन अगेन ऑन कॉस्ट और ये जो अभी वैराई सिखा रही थी हम लोग को, दैट सेम अपने को लेना पड़ेगा. देन फिर ये छोटे छोटे टिप्स काम नहीं आते. 13 तुम तो बहुत लॉजिकल बोल रही थी, मैं इलॉजिकल बोला. 13% है तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, फिर ऐसे ही मानूंगा.
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज 13 अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या होगा? 13 upon 113. 13 upon 113. 13 अपॉन 113 ऑफ सोल्यूशन। तो वही लॉजिक लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। या फिर अगर आप एक्स अज्यूम करते वट एवर द वे, बट आई फील कॉमर्स के बच्चे ये ज्यादा कंफर्टेबल है रादर देन अज्यूमिंग एक्स एंड अदर थिंग्स। सर वो तो मैथ्स में करते थे। और ये सब पूछते पूछते आपका टाइम खत्म हो गया है। तो अगेन आपको क्या करना है? Rejoin. 21st sum. हाँ वो करना है, और थोड़ा रिजॉइन करो। मैं थोड़ा उसके एक दो लॉजिक समझा देता हूँ ताकि आप वो घर पे कर सको, ठीक है? तो प्लीज ऑल ऑफ यू रिजॉइन, और यू विल डू इट विद योर ओन। सर ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है? तो डोंट रिजॉइन। यस सर, ट्राई करते हैं। हाँ सर, ट्राई डोंट करके रिजॉइन। देख. विल मीट Try. टुमारो ना, कल भी है ना अपना लेक्चर। तो जिसके पास नहीं वो स्क्रीनशॉट ले Yes, लो sir. इस क्वेश्चन का। सर पीडीएफ है तो सही सब लोगों के पास। जिसके पास बहुत सारे ऐसे कलाकार है भाई, सब तुम्हारी तरह स्कॉलर थोड़ी है। Kindly take down. See you tomorrow. कल भी लेक्चर है ना अपना?